الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم اپنا 8واں درس شروع کریں گے اور اس لیکچر میں ہم صفات حروف کو کنٹینیو کریں گے، اور آج کا جو ہمارا لیکچر ہوگا انشاءاللہ وہ مد کے بارے میں ہے کہ مد کس کو کہتے ہیں، مد کے کیا احکامات ہیں اور مد کی کیا قسمیں ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں اور ہم نے پچھلے کچھ لیکچرز سے شروع کیا ہے کہ تجوید میں دو چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے مخارج الحروف، یعنی حروف کہاں اور کس حصے سے ادا ہوتے ہیں منہ کے، ان کو ہم نے اچھی طرح سے جانا۔ پچھلے لیکچرز میں ہم نے وہ تمام چیزیں دیے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے یہ جانا کہ مخارج کے ساتھ ساتھ ہر ایک حرف کا کوئی نہ کوئی صفت ہوتا ہے، اس کی کوئی ایسی کوالٹی ہوتی ہے جس سے وہ، حالانکہ کچھ مخارج میں ہم نے دیکھا کہ کچھ حروف دو تین حروف ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں، مگر صفات کی وجہ سے، ان کے کوالٹیز کی وجہ سے، ان کی الگ الگ کیفیات کی وجہ سے وہ حروف دوسرے حروف سے مختلف ہوتے ہیں۔ اور جب صفت کی بات ہم کرتے ہیں تو ہم نے یہ جانا کہ صفت سے مراد مخرج سے حرف کو ادا کرتے وقت کچھ کیفیات حرف میں پائی جاتی ہیں، اور ان کیفیات کی جمع کو ہم صفات کہتے ہیں، یعنی سنگولر ہم کہیں گے صفت اور پلورل ہم کہیں گے صفات۔ اور بنیادی طور پر ان صفات کی دو قسمیں ہیں۔ اگر یہ صفت پرمنٹ ہے حرف کے ساتھ تو ہم کہتے ہیں اس کو صفات لازمہ یا صفت لازمہ، اور اگر یہ حرف کے ساتھ پرمنٹ نہیں ہے، یعنی اگر ہم حرف کے ساتھ ایسے صفات کو ادا نہ کریں، اس کے باوجود حرف ادا ہو جائے گا مگر خوبصورتی میں فرق آئے گی، ایسے صفات کو ہم صفات عارضہ کہتے ہیں۔ صفات لازمہ کے بارے میں ہم نے یہ جانا، یہ ایسے کیفیات ہیں جو حرف میں پائی جاتی ہیں اور بولتے وقت اگر ان صفات کو ادا نہ کیا جائے تو حرف نہیں رہ سکتا، بلکہ حرف میں بالکل ہی ایسی تبدیلی آئے گی کہ وہ حرف ناقص ہو جائے گا۔ اور صفت لازمہ کا ادا کرنا مخرج کی طرح حرف کے ساتھ ساتھ ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ حرف کو مخرج کے ساتھ ادا کریں گے مگر صفت لازمہ کو اس کے ساتھ ادا نہیں کریں گے تو وہ حرف ہی نہیں رہتا، بلکہ اس میں نقص پیدا ہوتا ہے۔ اور پچھلے ہم نے لیکچرز میں ہم نے یہ بھی جانا کہ صفت لازمہ کی دو قسمیں ہیں: صفت لازمہ متضادہ، یعنی ایسے پرمنٹ صفات، ایسے پرمنٹ کوالٹیز جو کچھ حروف میں کچھ پائے جاتے ہیں اور کچھ حروف میں اس کے اپوزٹ پائے جاتے ہیں۔ دوسری قسم صفت لازمہ غیر متضادہ، یعنی یہ ایسے پرمنٹ صفات ہے جو کچھ حروف میں تو پائے جاتے ہیں مگر ان کی ضد باقی حروف میں نہیں پائی جاتی۔ یہ ٹاپک ہم نے اپنے لیکچر نمبر 6 اور لیکچر نمبر 7 میں کمپلیٹ کیے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے جو یوٹیوب چینل کا جو لنک ہے میں بعد میں اس کو دے دوں گا، ڈاکٹر خالد حکیم، اس پہ یہ تمام پچھلے لیکچرز موجود ہیں، اور جس نے یہ مس کیا ہے تو وہ ان کا اعادہ کریں کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ آج سے ہم صفت عارضہ شروع کریں گے، یعنی یہ ایسے کیفیات ہیں، یہ ایسے کوالٹیز ہے جو حرف میں کبھی ہوتی ہیں اور کبھی نہیں ہوتی ہے، اور اگر حرف کو اس صفت کے ساتھ ادا نہ کیا جائے تو حرف تو باقی رہے گا مگر حرف میں اس کی خوبصورتی نہیں رہے گی۔ مثال کے طور پر کسی حرف کو ہم پر پڑھتے ہیں، موٹا پڑھتے ہیں، کسی کو ہم باریک پڑھتے ہیں،
किसी हर्फ को हम किसी हर्फ के साथ मिलाते हैं जिसको हम इदगाम कहते हैं, किसी हर्फ को किसी के साथ नहीं मिलाते जिसको हम इजहार कहते हैं, किसी हर्फ को हम नाक के बांसे में ले जाते हैं, खैशूम में ले जाते हैं जिसको गुन्ना कहते हैं, किसी हर्फ को हम तब्दील करते हैं, जब हम अदा करते हैं तो नून को हम मीम में तब्दील करते हैं जिसे हम इकलाब कहते हैं, किसी हर्फ की आवाज़ को हम छुपा देते हैं जिसको हम इख्फा कहते हैं, इसी तरह हम मद, किसी हर्फ को हम लंबा अदा करते हैं। तो ये ऐसे कुछ सिफात है जिनको हमने नाम दिया है सिफत आरिजा या सिफात आरिजा, यानी ऐसे सिफात जो हर्फ के साथ कभी अदा होते हैं कभी नहीं होते हैं, और अगर ऐसे सिफात हर्फ के साथ अदा न किए जाएं तो हर्फ में तो कमी नहीं वाक़ा होगी, मगर खूबसूरती में, पढ़ने की खूबसूरती में, तजवीद के साथ कुरान को पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें पेश आ सकती है, और जो एक खूबसूरती है कुरान के पढ़ने में, उस खूबसूरती में फ़र्क आ जाएगा। और आज से हम सिफत आरिज़ा शुरू करेंगे इंशाअल्लाह मुस्तान, 2-3 लेक्चर्स में पूरा हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो दूसरा मंजिल है यानी अरबिक ग्रामर, बेसिक ग्रामर, उस पर हम इंशाअल्लाह आ जाएंगे। तो आज इस सिफत आरिज़ा में हम पढ़ेंगे मद की अक़साम। सबसे पहले ये जानिए कि मद का मतलब क्या होता है। मद का मतलब है लंबा करना, यानी हमारे पास कुछ ऐसे हुरूफ हैं जिनको हमेशा हम लंबा करके अदा करते हैं, यानी उनकी जो अपनी फितरी और असली हालत है उसके मुकाबले में उनको हम, उनकी आवाज़ को हम लंबा कर देते हैं, उनकी आवाज़ में हम लंबाई ले आते हैं। ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं मद। याद रखना चाहिए हमारे पास कुछ हुरूफ ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं मद्दे, हुरूफ मद्दा, यानी ऐसे हुरूफ जिन पे मद आ सकती है, जिनको हम लंबा कर सकते हैं, इनको हम कहते हैं हुरूफ मद्दा। ठीक है। और हुरूफ मद्दा जब भी अदा होता है उस पे मद आ जाती है, उसको कहते हैं मद असली। यानी जब भी हम हुरूफ मद्दा को अदा करते हैं, उसकी आवाज़ को लंबा करते हैं, ऐसी हालत को हम कहते हैं मद असली, यानी ओरिजिनल मद। यानी हुरूफ मद्दा को हम लंबा करते हैं, नेचुरली लंबा करना, यानी फितरी तौर पे उसकी लंबाई को अदा करना, ऐसी मद को हम कहते हैं मद असली। और इस मद को, यानी जो फितरी तौर पे हम हर्फ मद्दा के साथ अदा करते हैं, इसकी जो मिकदार है, यानी कितना लंबा इसको करना है, वो 2 हरकात के बराबर है। 2 हरकात या 1 अलिफ के बराबर। अब ये कैसे हम मेजर करें। देखिए जो हमारी उंगली है ना, इस उंगली को जब हम बंद करेंगे और खोलेंगे नेचुरल कंडीशन में, इस जो हमने इतना टाइम लिया उंगली को बंद करके छोड़ने में, इसको हम कहते हैं 2 हरकात या 1 अलिफ। मिसाल के तौर पर हमारे पास 3 हुरूफ मद्दा है। याद रखना चाहिए एक हर्फ मद्दा है वाव साकिन, जबकि वाव साकिन से पहले पेश हो, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, कालू कालू। आपने देखा हमने कैसे लंबा किया, लू लू, 1 अलिफ के बराबर, यानी 2 हरकत के बराबर। हमने एक उंगली को खोल के बंद किया, उसके बाद अपनी कंडीशन में वापस ले आए, इसको हम कह सकते हैं 2 हरकत या 1 अलिफ के बराबर। तो कौन सा हर्फ मद हमारे पास पहले है, वाव साकिन माकबल पेश। जब भी आप देखेंगे वाव साकिन माकबल पेश, याद रखना चाहिए ये वाव मद्दा है। कैसे पढ़ेंगे, कालू लू। ठीक है, हमने लंबा किया। इसी तरह हमारे पास हर्फ मद अलिफ है, और हर्फ मद अलिफ कब है, जब अलिफ से पहले जबर हो। अलिफ साकिन होगा, यानी सॉरी, अलिफ साकिन नहीं होगा, अलिफ खाली होगा, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं दाई में अलिफ खाली होगा और उससे पहले जबर होगा, क्योंकि अलिफ पे अगर जबर जेर पेश होगा तो वो अलिफ नहीं, वो हमजा है। जैसे कैसे पढ़ेंगे हम, दाई, दा दा, यानी अलिफ को हमने लंबा किया, उसकी मिकदार को हमने लंबा किया 1 अलिफ के बराबर या 2 हरकत के बराबर, जिस तरह हमने इस उंगली को बंद किया और छोड़ दिया। तो हमारे पास हर्फ मद्दा है वाव साकिन माकबल पेश और अलिफ माकबल जबर। तीसरा हर्फ मद्दा हमारे पास है या, और या कब हर्फ मद्दा है, जब या साकिन
माकबल जेर हो, जैसा कि यहां आप देख रहे हैं दाई ई ई, या को हमने लंबा किया क्योंकि या साकिन माकबल जेर है, या साकिन माकबल जेर, तो या भी हमारे पास हर्फ मद्दा है। अब इससे ये पता चला हमारे पास कि असल में हमारे पास जो हुरूफ मद्दा है वो तीन है। कौन कौन? एक है वाव, ठीक है, वाव साकिन, वाव साकिन, वाव नहीं बल्कि वाव साकिन माकबल, माकबल मतलब इससे पहले वाले हर्फ पे पेश होना चाहिए, तभी वाव साकिन माकबल पेश, तो वाव मद्दा कहलाएगा। इसी तरह अलिफ हमारे पास हर्फ मद्दा है। अलिफ कब हर्फ मद्दा है? अलिफ होगा खाली, उससे पहले हर्फ पे जबर होगा, हम कह सकते हैं अलिफ माकबल जबर। और या हमारे पास हर्फ मद्दा है कब? जब या साकिन माकबल जेर। तो मोटे मोटे अंदाज में वाव, अलिफ और या, जिनको हम आम जबान में हुरूफ इल्लत भी कहते हैं, वाई, इनको हम हुरूफ मद्दा भी कहते हैं। किस सूरत में? जब वाव साकिन माकबल पेश हो, माकबल मतलब उससे पहले हर्फ, अलिफ हो, अलिफ खाली होगा और उससे पहले हर्फ पर जबर होगा, माकबल जबर, और या साकिन होगा, उससे पहले हर्फ पर जेर, कह सकते हैं हम या साकिन माकबल जेर। इन तीन कंडीशन में जब भी आप इन हरूफ को देखेंगे, याद रखना चाहिए ये तीन हरूफ हमारे पास हुरूफ मद्दा है। और आम सूरत में जब आप इनको देखेंगे, जैसे यहां पर आपने देखा कालू में वाव को, इसी तरह दाई में अलिफ को दाल के साथ, और ई या को या साकिन को माकबल यानी जो आइन है उसके नीचे जेर के साथ। इन तीन सूरतों में जैसे आपने उसको देखा कि हमने इसको लंबा किया, ये जो लंबा हमने किया सिर्फ एक अलिफ के बराबर या दो हरकत के बराबर किया, ऐसी मद को हम कहते हैं मद असली, क्योंकि असल में इतना इसको इन्हें इन हरूफ को इतना ही लंबा किया जाता है। कालू, दाई, क़ा में क़ाफ के साथ जो अलिफ है और जो लाम के साथ वाव है, ये दोनों हुरूफ मद्दा है। और दाई में दाल के साथ जो अलिफ है, और ई या के साथ जो ये आइन है, यानी आइन के साथ जो या है, तो या साकिन माकबल जेर, अलिफ माकबल जबर और वाव साकिन माकबल पेश, ये तीनों जो कंडीशन हमारे पास है, इनको हम कहते हैं हुरूफ मद्दा। और इन पे जो मद अदा होती है, जो उनकी नेचुरल लंबाई है, दो हरकत या एक अलिफ, इसको हम कह सकते हैं मद असली, असली यानी ओरिजिनल मद, इनको इतना ही लंबा किया जाता है। मगर कभी कभी आप देखेंगे इन मद असली के साथ साथ अगर इनके बाद फौरन बाद हमारे पास हमजा, हमजा ये छोटी आइन की तरह लिखा जाता है, जैसे यहां पर जा में हमजा यहां लिखा गया है, या सुकून जिसको हम जज्म कहते हैं, अगर हुरूफ मद्दा के बाद हमजा या जज्म आरजी सुकून पाया जाए, तो याद रखना चाहिए उस सूरत में इस मद को मद असली के बजाय मद फरई कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या सिचुएशन सामने आ गई? सबसे पहले ये कि मद्दा का मतलब है लंबा करना, और मद्दा जो है ये असल में फितरी तौर पर तीन हरूफ है जिनको हरूफ मद्दा कहते हैं। इन्हीं तीन हरूफ पे मद होती है। एक है वाव साकिन माकबल पेश, दूसरा है अलिफ माकबल जबर, माकबल मतलब उससे पहले, और तीसरा है या साकिन माकबल जेर, इनको हरूफ मद्दा कहते हैं। और बुनियादी तौर पे इनको अगर हम ऐसे अदा करें जैसे कालू, दाई, सिर्फ एक अलिफ के बराबर, तो ऐसी मद को हम मद असली या मद तबीई कहते हैं बुनियादी तौर पर। मगर अगर इन सिचुएशंस में इसके फौरन बाद आप हमजा या सुकून जिसको हम जज्म भी कहते हैं, इन दो को साथ में देखेंगे, तो याद रखना चाहिए उस वक्त वो मद असली नहीं मद फरई बन जाती है। ठीक है, मद फरई बन जाती है। और हमजा और इस आरजी सुकून को हम सबब मद भी कहते हैं, सबब मद, यानी उनकी वजह से ये मद असली जो है ये कन्वर्ट हुई है मद फरई। ठीक है, तो ये हमें बुनियादी तौर पर याद रखना है। जब हम बात करेंगे मद फरई की, याद रखना चाहिए मद फरई की जो तादाद है ना, यानी उसकी जो लंबाई है, ये मद असली से ज्यादा है। और मद फरई की हमारे पास फिर मजीद चार किस्में आ जाती है।
सबसे पहले मद फरई की एक किस्म है मद मुतस्सिल, मद मुतस्सिल, ठीक है। इस मद मुतस्सिल को हम मद वाजिब भी कहते हैं, ठीक है। इसकी सूरत यह है कि जब भी हमारे पास हरूफ मद्दा में से कोई हर्फ आए, चाहे वाव साकिन माकबल पेश हो, चाहे अलिफ माकबल जबर हो, या साकिन माकबल जेर हो, अगर इनके बाद, इन तीनों में से किसी के बाद अगर हमारे पास हमजा या सुकून, यानी हमजा या ये आरजी सुकून अगर हमारे पास उसी कलमे में आए, उसी कलमे में, मिसाल के तौर पर आपके सामने यहां मिसाल है या, अब देखिए या में जीम पे जबर है, जीम के साथ अलिफ है, तो अलिफ हरफी मद्दा है, ठीक है। अगर सिर्फ या होता तो इस मद्दा को हम कहते हैं मद असली, मगर आपने देखा इस अलिफ के बाद जो हरफी मद्दा है उसके बाद हमजा है, और मैंने आपको बताया अगर हमारे पास हरफी मद के बाद सबब मद हो, चाहे हमजा हो या सुकून हो जिसको हम जज्म कहते हैं, तब उस सूरत में ये मद असली नहीं मद फरई है। अब मद फरई की कौन सी किस्म? मद मुत्तसिल। मुत्तसिल का मतलब होता है जो जुड़ा हुआ है। तो आम जबान में हम ये कह सकते हैं जब हमारे पास हुरूफ मद्दा या हरफ मद के बाद उसके बाद जो सबब है, चाहे वो हमजा हो या सुकून हो, वो एक ही कलमे में हो, एक ही कलमे में। और हमजा ही होगा, सबब ज्यादातर तो आप हमजा ही देखेंगे, होगा, सुकून नहीं हो सकता। ज्यादातर आप देखेंगे कि ये असल में सुकून नहीं होगा, ये हमजा होगा। जैसा कि मैंने एक साथी अभी बीच में कह रहे थे, इसको मैं बताने वाला था। यानी ज्यादातर, मैं तो आपको एक मिसाल दे रहा था कि हरफ मद के बाद अगर सबब मद हमजा या सुकून हो उसको हम मद फरई कहेंगे, मगर मद मुत्तसिल का मतलब यह है कि जब भी हमारे पास हरफ मद के बाद सबब मद हमजा की शक्ल में हो और एक ही कलमे में हो। जैसा कि मेरे एक साथी ने मुझे बीच में कहा कि सुकून नहीं होगा, वो सही बात है क्योंकि वो दूसरी कंडीशन है। मैं सिर्फ आपको एक समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सबब मद जो है, सबब मद मतलब हमजा या सुकून, ये एक ही कलमे में होगा। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, या अलिफ हमारे पास हरफ मद है और सबब मद हमजा है, याद रखना चाहिए हमजा ही होगा। सुकून तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए कहा क्योंकि सुकून की कंडीशन एक और दूसरी किस्म के साथ आती है जिसको हम मद फरई कहते हैं। दूसरी मिसाल है सूउन। अब देखिए यहां पर हमारे पास वाव साकिन माकबल पेश है, तो वाव साकिन माकबल पेश, इसको हमने नाम दिया है ये हरफ मद्दा है। उसके बाद आपने देखा ये हमारे पास हमजा है, तो हमजा फिर से सबब मद बन के आ गया, तो यहां पे भी हमारे पास मद मुत्तसिल है। तीसरी मिसाल है सीअत, यहां पर या की मिसाल है, या साकिन माकबल जेर, उसके बाद हमजा है बशकल सबब मद और एक ही कलमे में। ये दो चीजें आपने याद रखी, हमारे पास जब हरफ मद होगा उसके फौरन बाद सबब मद होगा और एक ही कलमे में होगा, याद रखना चाहिए। इसको हम मद मुत्तसिल कहते हैं, इसको हम मद वाजिब भी कहते हैं। और इस मद को हम तकरीबन 4 हरकात के बराबर, कोई कोई जगह पे लिखा गया है 6 हरकात के बराबर, इसको हम लंबा करते हैं। एक हरकत यानी एक हरकत दो, यानी 2 हरकत एक अलिफ के बराबर है। जब तक हमने इस उंगली को बंद किया, छोड़ दिया, ये हमारे पास एक अलिफ हो गया। इसी तरह अगर हम 2 बार या 3 बार करेंगे, इतना लंबा करने को हम कह सकते हैं 4 हरकत या 6 हरकत, या हम कह सकते हैं 2 अलिफ या 3 अलिफ के बराबर इसको लंबा करते। कैसे हम पढ़ेंगे? या सूउन सीअत। आपने देखा होगा जो कुर्रा हजरात है, कारी जो पढ़ने वाले हैं, वो इन सूरतों में इन्हें जब हुरूफ मद्दा के बाद सबब मद्दा आता है, जैसे मद मुत्तसिल की मिसाल आपके सामने मैंने दी, इसको वो काफी लंबा अदा करते हैं और इसी में अपनी खूबसूरती को वो जाहिर करते हैं। यानी उनकी आवाज में जो निखार और खूबसूरती पैदा होती है वो इसी वजह से होती है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने अर्ज किया कि जो मद है ये असल में सिफात आरिजा में आती है, यानी एक आर्जी सिफत है। मान लीजिए किसी ने मद अदा नहीं किया, उसके बावजूद हरफ तो अदा हो गया, मगर इसमें जो खूबसूरती है, एक निखार है, एक ब्यूटी है, एक क्वालिटी में जो ब्यूटी है, वो ब्यूटी हमारी खत्म हो गई। तो मद मुत्तसिल मद फरई की पहली किस्म है और मद मुत्तसिल को हम मद वाजिब भी कहते हैं।
दूसरी मिसाल है मद फरई की, उसको हम कहते हैं मद मुनफसिल। अब याद रखिएगा, मुनफसिल का मतलब होता है जब हरफी मद और सबब मद में फासला हो, उनके बीच में फासला हो। तो हम ये कह सकते हैं हमारे पास हुरूफ मद्दा में चाहे वाव साकिन माकबल पेश हो, अलिफ माकबल जबर हो, या साकिन माकबल जेर हो, इन तीनों में से कोई हरफ आए इस कंडीशन में, उसके बाद जो हमारे पास सबब हो वो भी सुकून होगा, यानी हमजा होगा, मगर वो हमजा नॉर्मली हमारे पास दूसरे कलमे में होता है, उसी कलमे में नहीं होता, मुनफसिल यानी फासला होता है। और अक्सर व बेशतर आप देखेंगे जो हमारे बरसगीर में कुरान मजीद देखते हैं हम, जिसका जो किताबत बरसगीर में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में आप देखेंगे, उस वक्त वो हमजा जो बनाते हैं ना, वो अलिफ की शक्ल में बनाते हैं, यानी अलिफ पे जबर होगा या कुछ होगा, उस सूरत में वो हमजा को पेश करते हैं। अगर आप अरब में देखेंगे, सऊदी अरबिया में या जो गल्फ में कुरान मजीद का जो हमारे पास उसकी किताबत वाला कुरान मजीद है, उसमें दोनों चीजें पाई जाती, कभी आप अलिफ भी पाएंगे, कभी आप हमजा भी पाएंगे। मगर आपको याद रखना पड़ेगा रूल क्या है। रूल ये है कि मद मुनफसिल उस सूरत में हो जाती है जब हरफी मद के बाद सबबी मद हमजा होगा, मगर वो दूसरे कलमे में होगा। जैसा यहाँ पर जा सुउन सीअत, इनको जब हम लंबा करते हैं तो आप देखेंगे हरफी मद के बाद सबबी मद एक ही कलमे में है, क्योंकि जा एक ही कलमा है, सुउन एक ही कलमा है, सीअत एक ही कलमा है। उसके बरकस आप देखिए यहाँ पर इन्ना अअतैनाका, अब देखिए यहाँ पर इन्ना जो है, इन्ना में जो अलिफ है, अलिफ माकबल जबर, तो अलिफ हो गया हरफ मद, मगर उसके बाद जो सुकून है, सुकून आप कहाँ देखेंगे, ये अअतैना में जो अलिफ आपको दिख रहा है जिस पे जबर है, ये असल में अलिफ नहीं, ये हमजा है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया अलिफ तब होता है जब अलिफ खाली हो, अलिफ पे जबर जेर पेश होगा तो वो अलिफ नहीं होता, ठीक है। वो अलिफ जो है वो असल में उस वक्त हमारे पास हमजा होता है। तो इन्ना में जो आपने अलिफ देखा ये हरफ मद है, और अअतैनाका ये जो हमजा इससे पहले है, ये हमजा इस हरफ मद के लिए सबब मद होगा, सबब मद होगा। तो ये चूंकि हरफ मद और सबब मद अलग अलग कलमों में है, इस मद को हम कहते हैं मद मुनफसिल। मुनफसिल का मतलब जिसमें फासला हो। एक और मिसाल है क़ालू आमन्ना। अब देखिए क़ालू में वाव साकिन माकबल पेश है, ठीक है, तो वाव मद्दा हो गया, और क़ालू एक अलग कलमा है। और जब हमने पढ़ा आमन्ना, ये जो आप अलिफ के साथ एक छोटा अलिफ देख रहे हैं ना, तो ये अलिफ नहीं रहता, ये हमजा है। तो आपने देखा क़ालू में वाव साकिन माकबल पेश, ये हरफ मद है, और आमन्ना में जो पहले आप अलिफ की शक्ल में हमजा आप देख रहे हैं, ये इसका सबब है। तो हरफ मद के बाद सबब मद अलग अलग कलमों में आप देख रहे हैं, तो ऐसी मद को हम कहते हैं मद मुनफसिल, फासला वाली मद। इनमें फासला है, इनमें डिफरेंस है, इनमें एक तरह से गैप है, हरफ मद एक कलमे में और सबब मद दूसरे कलमे के इब्तिदा में। एक और मिसाल हमारे पास है फी अंफुसिहिम। यहाँ आप देखिए या साकिन माकबल जेर, तो या हमारे पास हरफ मद्दा है, और अंफुसिहिम में ये जो अलिफ की शक्ल में आप अलिफ के ऊपर जबर है, तो ये अलिफ नहीं, ये हमजा है। आपने देखा फी हरफ मद्दा, या साकिन माकबल जेर, और सबब मद्दा जो है वो यहाँ पर हमजा, ये हमजा है बस बशक्ल अलिफ अंफुसिहिम में। तो हरफ मद्दा फी अलग कलमे में, अंफुसिहिम में जो हमारे पास हमजा है बशक्ल अलिफ अलग कलमे में। इस तरह आपको पता चलेगा ये मद मुनफसिल है। मद मुनफसिल को नाम दिया जाता है मद जायज भी, यानी आप कभी इसको मद मुनफसिल पाएंगे नाम में, कभी इसको मद जायज, ज्यादातर अरब इसको मद जायज ही कहते हैं। मद मुनफसिल और मद मुत्तसिल इस तरह याद रखा जाता है, मुत्तसिल मतलब एक ही कलमे में हरफ मद के बाद सबब मद फौरन, और मद मुनफसिल एक ही यानी अलग अलग कलमों में, हरफ मद एक कलमे में, सबब मद दूसरे कलमे में, ठीक है।
اور یاد رکھنا چاہیے اس کی جو مقدار ہے یہ بھی بقدر 4 حرکات، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں 2 الف یا 2.5 الف کے برابر ہے، اس کو لمبا کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ 2 قسمیں ہمارے پاس مد فریقی آ گئی۔ تیسری قسم جو مد فریقی ہے وہ مد لازم ہے۔ مد لازم جو ہے یہ سب سے بڑی مد ہے، سب سے لمبی مد ہے، اور اس میں یاد رکھنا چاہیے اس میں بھی حرف مدہ چاہے واو ساکن ما قبل پیش ہوگا یا الف ہوگا ما قبل زبر یا واو ساکن یا ساکن ما قبل زیر، یہ حرف مدہ کے بعد اس کے بعد جو ہمارے پاس سبب ہوگا یاد رکھنا چاہیے وہ سبب یا تو سکون لازم ہوگا۔ سکون لازم مطلب اوریجنل سکون۔ اب دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس حمزہ جو تھا مد متصل اور مد منفصل کے ساتھ ایز اے سبب لگا، مگر مد لازم میں حمزہ نہیں ہوتا بلکہ جو اس کی یعنی جو اس کا سبب ہوتا ہے وہ سکون ہوتا ہے، جزم ہوتا ہے۔ اب جزم جو ہوتا ہے یا تو وہ جزم ہوگا جزم کی صورت میں یا وہ تشدید کی صورت میں ہوگا، کیونکہ جب بھی ہم تشدید کو دیکھتے ہیں تو اس کا پہلا حرف جزم والا حرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو حرف مدہ کے بعد اگر ہمارے پاس سبب مدہ یاد رکھنا چاہیے سکون لازم ہوگا، انہیں جزم ہوگا جو اوریجنل جزم ہے، یا ہمارے پاس وہ جزم تشدید کی شکل میں ہوگا، یاد رکھنا چاہیے ایسی مد کو ہم کہتے ہیں مد لازم۔ مد لازم یاد رکھنا چاہیے یا تو یہ کلموں میں ہوگا، انہیں پورا کلمہ ہوگا، جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں حاج، حاج، یہ جو الف آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد جیم کے اوپر آپ تشدید دیکھ رہے ہیں، تو اصل میں تشدید کی صورت میں یہاں پر حمزہ یعنی یہاں پر ہمارے پاس سکون ہے، جزم ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو کنڈیشن ہمارے پاس ہے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس ایک کلمہ ہے، پورے کا پورا ایک ورڈ ہے، کلمہ ہے۔ اگر اس طرح کی مد لازم ہمارے پاس ہوگی، ایسی مد لازم کو ہم کہتے ہیں مد لازم کلمی، کلمی یعنی ورڈ میں مد لازم کلمی۔ اور اسی طرح اگر ہمارے پاس مد لازم ہوگا مگر وہ کلمہ نہیں بلکہ حرف ہوگا، جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں قاف صاد نون، کیونکہ یہاں پہ بھی مد لازم ہے، ٹھیک ہے؟ ایسی مد کو ہم کہتے ہیں مد لازم حرفی، حرفی۔ مد لازم اگر کلمے پہ ہوگا تو مد لازم کلمی، مد لازم اگر حرف پہ ہوگا تو مد لازم حرفی۔ اور یاد رکھنا چاہیے مد لازم سب سے لمبی ادا کرنے والی مد ہے، اس کو جو ادا کرتے ہیں یہ 6 حرکات یا 8 حرکات، یعنی مطلب ہو گیا 3 الف یا 4 الف کے برابر اس کو لمبا ادا کرتے ہیں مد لازم، ٹھیک ہے؟ تو کیا پتا چلا مد لازم کے بارے میں؟ ہمیں یہ پتا چلا مد لازم کے بارے میں کہ یہ ایسی مد ہے جس میں حروف مدہ کے بعد سبب مدہ سکون لازم پایا جائے، یعنی اوریجنل سکون پایا جائے، اور وہ سکون یا تو سکون کی شکل میں ہوگا یا وہ تشدید کی شکل میں ہوگا، ٹھیک ہے؟ دوسری بات ہم نے اس کے بارے میں یہ جانا کہ اگر مد لازم کلمے میں آئے، جیسے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں آل آنا ہے، حاجہ ہے، ولضالین ہے، ایسی مد لازم کو ہم کہتے ہیں مد لازم کلمی۔ اور اگر مد لازم ہمارے پاس حرف پہ آ جائے، دیکھیں یہاں پر حرف آپ دیکھ رہے ہیں قاف ہے، صاد ہے، ان کو لمبا کریں گے، ایسی مد لازم کو ہم کہتے ہیں مد لازم حرفی۔ تو یہ جو میں نے آپ کو ڈفرنٹ الگ الگ طریقوں سے آپ کو بتایا، ان کو ہم مد لازم کو ہم فردر پھر ہم ایکسپلین کریں گے مد لازم کلمی، یعنی جب ہمارے پاس حرف مدہ کے بعد اسی کلمے میں مشدد حرف یا ساکن حرف ہو جس کا سکون اصلی ہو، جیسا کہ آپ نے یہاں پر دیکھا آنا، اسی طرح تو آل آنا میں لام کے اوپر سکون لازم، یعنی اس سکون کو آپ دیکھیں گے۔ اسی طرح تشدید آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایسی صورت میں جو مد لازم ہوگی وہ مد لازم کلمی کہلاتی ہے، کیونکہ یہ کلمے کے اوپر ہے۔ دوسرا ہے مد لازم حرفی، یعنی حرف مدہ کے بعد
जब हरूफ मुक़त्ताआत में से कोई हर्फ हो और उसके बाद आप देखेंगे कभी कभी उसमें तशदीद आ जाता है और कभी कभी उसमें सुकून असली पाया जाता है, ठीक है, तो ऐसी सूरत में इसको हम कह सकते हैं मद लाजिम हरफी। आपके सामने यहाँ पर कौफ है, साद है, नून है, इसी तरह अलिफ लाम मीम, लाम और मीम के ऊपर जो आप मद देख रहे हैं ये दोनों मद लाजिम है, मद लाजिम हरफी, और उससे पहले जो मैंने मिसाल दी वो है मद लाजिम कलमी। तो ये दो मिसालें आ गई हमारे पास मद लाजिम की। चौथी मिसाल जो हमारे पास मद फ़रई की है उसको कहते हैं मद आरिज़। मद आरिज़ में क्या होता है कि हमारे पास हरफ मदा होगा, यानी वाव साकिन माकबल पेश या अलिफ माकबल ज़बर या साकिन माकबल ज़ेर, इसके बाद जो आखिरी हरफ होगा उस पर हम आर्जी सुकून लाएंगे। आर्जी मतलब यानी उस पर सुकून नहीं होगा, जज़म नहीं है, मगर वक्फ की सूरत में उस पर हम सुकून लाएंगे, आर्जी तौर पर टेम्परेरी उस पर हम सुकून लाएंगे, जिसकी वजह से हरफ मद को हम लंबा करेंगे। ऐसी मद को हम कहते हैं मध्य आरिज। मध्य आरिज यानी टेम्परेरी मद। जैसा मिसाल के तौर पर हमारे पास है तुकज़्ज़िबानी, तुकज़्ज़िबानी, उसमें क्या है, बा के साथ आप देख रहे हैं अलिफ है, यानी बा के माकबल में अलिफ है, उसके बाद नून के नीचे ज़ेर है, तो ये आम सूरत में मध्य हमारे पास मध्य असली है। मगर अब अगर हम यहाँ पर ठहरेंगे, नून को हम साकिन बनाएंगे, नून पे हम आर्जी सुकून लाएंगे, तो कैसे पढ़ेंगे इसको, तुकल्लिबान, तुकल्लिबान। तो लंबा मैंने क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि मैंने नून को साकिन बनाया, क्योंकि नून के ऊपर ओरिजिनल सुकून नहीं था, ठीक है, इस पर मैंने टेम्पररी सुकून लाया, आर्जी सुकून लाया, तो ऐसी मद को हम कहते हैं मध्य आरिज। इसी तरह नस्तईनु, अगर हम नून को साकिन बनाएंगे टेम्पररी तौर पे पढ़ा जाएगा नस्तईन। इसी तरह यअलमूना, इसको हम पढ़ेंगे यअलमून, यानी आखिरी हरफ को हम साकिन बना रहे हैं। ऐसी आखिरी हरफ को साकिन बनाने की सूरत में इस पे जो मद आती है, चूंकि इस पे सबब मद ओरिजिनल नहीं था बल्कि हमने टेम्पररी सुकून इस पे लाया, ऐसी मद को हम कहते हैं मद आरिज। और मद आरिज को भी लंबा किया जाता है, मिकदार इसकी 6 या 4 या 2 हरकत के बराबर है। डिपेंड करता है कि आप किस तरह की क़रत करते हैं, क्योंकि क़रत में भी किस्म है। अगर आप तरतील के साथ बहुत ही सुकून के साथ पढ़ रहे हैं तो इसकी लंबाई भी मद लाजिम की तरह है, और अगर आप हदर या तदवीर में कुरान पढ़ रहे हैं, उसकी अलग मैं डेफिनेशन बताऊंगा, उस सूरत में इनको 2 अलिफ या 1 अलिफ के बराबर भी लंबा किया जाएगा। तो ये तो था हमारे पास मदों की किस्म। अगर मैं आपको एक फाइनल आपके सामने एक खाका पेश करूं, उसके में हमने ये पढ़ा कि मद का मतलब होता है लंबा करना, और फितरी तौर पे हमारे पास 3 हरूफ असल में हैं जिनको हम लंबा करते हैं। उन हरूफ को हम कहते हैं उस वक्त मध्य असली। एक हमारे पास वाव साकिन जबकि माकबल में पेश होता है, अलिफ होता है खाली और उससे पहले जबर होती है हरफ पर, तो तीसरा हमारे पास या साकिन माकबल जेर। इन 3 सूरतों को अगर आप ऐसे ही देखेंगे तो उस पर एक फितरी तौर पे एक लंबाई पैदा होती है, 1 अलिफ के बराबर, 2 हरकत के बराबर। इनको हम कहते हैं मद असली। मिसाल के तौर पर आपके सामने यहाँ पर मैंने मिसाल दी या आ, या आ, तो यहाँ पर आपने देखा अलिफ माकबल जबर है और उसके बाद जो हमजा है उस पर भी जबर है, तो ये हमारे पास मद असली है। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि अगर हमारे पास मद असली के बाद कोई ना कोई सबब पैदा होता है, सबब हमारे पास 2 है, या हमारे पास सुकून होगा या हमारे पास हमजा होगा। इन 2 सूरतों में चाहे हमारे पास हरफ मद के बाद हमजा होगा या सुकून होगा, ऐसी कंडीशन में इस मद असली को हम नाम देते हैं मद फरई। अब मद फरई हमारे पास बुनियादी तौर पर 4 किस्में हैं। पहली किस्म है मद मुत्तसिल, जब हमारे पास हरफ मद के बाद सबब मद हमजा आए और एक ही कलमे में हो, जहां पर आपने ये देखा, इसको हम कहते हैं मद मुत्तसिल। इसको मद वाजिब भी कहते हैं और इसकी मिकदार है 4 से 6 हरकत के बराबर या 2 से 3 हरकत अलिफ के बराबर लंबा करना। दूसरा है मद मुनफसिल,
मद मुनफसिल का मतलब यह है जब हमारे पास हर्फ मद के बाद दूसरे कलिमे के शुरू में हमजा आए, जैसा कि आपने यहाँ मिसाल देखी, इन्ना अअतैनाका में, इन्ना में अलग से हर्फ मद है और उसके बाद फौरन बाद जो दूसरा कलिमा है उस पर हमारे पास सुकून है। ऐसी मद को कहते हैं मद मुनफसिल। ये मद जायज़ भी कहलाती है। इसकी मकदार भी बकदर 4 हरकत 2 अलिफ या 2.5 अलिफ के बराबर है। उसके बाद हमारे पास मद लाजिम है, सबसे लंबी मद। इसमें यह याद रखना है कि जब भी हमारे पास हर्फ मद के बाद सबब मद में सुकून लाजिम हो, यानी ओरिजिनल सुकून हो, परमानेंट सुकून हो, चाहे वो सुकून की शक्ल में हो चाहे वो तशदीद की शक्ल में हो, उस सूरत में उसको मद लाजिम कहते हैं। अब इसकी 2 मिसालें हैं। एक है मद लाजिम कलमी। अगर ये कंडीशन यानी हर्फ मद के बाद सुकून लाजिम या मुशद्दद हर्फ आ जाए उसी कलमे में, कलमे की शक्ल में, उसको कहते हैं मद लाजिम कलमी। अगर हमारे पास हर्फ मद्दा के बाद सुकून या तशदीद एक ही हर्फ में हो और वो हरूफ मुक़त्तात है जो कुरान मजीद में मखसूस हरूफ है, ऐसे मद लाजिम को हम कहते हैं मद लाजिम हर्फी। यहाँ मिसालें दी गई हैं। उसके बाद हमने आपके सामने मद आरिज की मिसाल बयान की। मद आरिज ऐसी मद को कहते हैं जिसमें हर्फ मद के बाद सुकून आ जाए मगर वो सुकून आरिज हो, यानी वो ओरिजिनल या परमानेंट सुकून मद लाजिम की तरह ना हो। और ये कंडीशन अक्सर और बेशतर जब हम आयत अदा करते हैं, पूरी आयत के आखिर में हम ऐसी कंडीशन देखते हैं। ऐसी मद को हम कहते हैं मद आरिज। इसके साथ साथ एक और मद है जिसको हम कहते हैं मद लाजिम लीन। अब मद लाजिम लीन का मतलब यह है इस वक्त हमारे पास हर्फ मद्दा नहीं होता, हमारे पास लीन वाले हुरूफ है। और लीन आपको पता है वाव साकिन माकबल जबर, या साकिन माकबल जबर। ऐसी कंडीशन में जब या साकिन माकबल जबर, वाव साकिन माकबल जबर, जिनको हम लीन कहते हैं, और उस सूरत में हमारे पास ऐसी कंडीशन आए यानी लीन के बाद हमारे पास सुकून लाजिम आ जाए, उस सूरत में जो मद आती है उसको हम मद लाजिम लीन भी कहते हैं। मद लाजिम लीन यानी हर्फ लीन के बाद, हर्फ मदा नहीं बल्कि हर्फ लीन के बाद वाले हरूफ पर सुकून असली हो। ये हरूफ मुक़त्तात में सिर्फ आइन पर 2 जगह कुरान मजीद में है। एक है ये काफ हा या आइन साद, एक ये कंडीशन है। दूसरा है यहाँ पर आइन सीन कॉफ। ठीक है, इस चीज को हम अगले लेक्चर में भी कंटिन्यू करेंगे मिसालों के जरिए। आज हमारा वक्त खत्म हुआ है। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि हमारे काविशों को कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।